محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا، چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہیں۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز، نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم سرخیوں پر۔ معذورین کو پورے ملک میں سب سے زیادہ پینشن کی فراہمی کرنے والے صرف تلنگانہ حکومت۔ کاماریڈی میں نابینا افراد میں پینشن پاس بک کی ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھناگ سرینواس ریڈی نے کی تقسیم۔ ٹاسک کے زیر اہتمام جاب میلے کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ 3500 افراد کو آفر لیٹر کی۔ متحدہ ضلع ملسی کے کویتا ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا آر ٹی سی چیئرمین باجریٹی گوردھن نے کیے حوالے۔ یہ تو بس آغاز ہے کیا ہی۔ بیوی و سسرالی رشتہ داروں نے کیا شوہر کا بے دردی سے قتل۔ شہر کے رورل پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا واقعہ۔ راکھی تہوار کے مد نظر خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم۔ آرمون رکن اسمبلی جیون ریڈی کے مکان پر پہنچتے ہوئے 400 خواتین نے باندھی راکھی، وہ ان کو تحفتاً ان میں ساڑیوں کی گئی تقسیم۔ راکھی تہوار کے موقع پر آر ٹی سی کی جانب سے خواتین کے لیے خصوصی آفر کا آر ٹی سی نے کیا اعلان۔ 17 گاڑیوں کی چوری میں ملوث سارقین کو ڈچپلی پولیس نے لیا حراست میں۔ اے سی پی ایم کرن کمار کا صحافتی بیان۔ دشا میٹنگ کا ضلع کلکٹر دفتر پر ایم پی اروند کی قیادت میں انعقاد۔ عہدیداروں کو دی مختلف ہدایتیں۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ 17 گاڑیوں کی چوری میں ملوث و بین ریاستی چوروں کی ٹولی کو ڈچپلی پولیس نے لیا حراست میں۔ اے سی پی ایم کرن کمار کا صحافتی بیان۔ آج نظام آباد اے سی پی ایم کرن کمار کی قیادت میں اے سی پی دفتر پر ایک صحافتی نشست کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈچپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس 2 افراد کو مشکوک حرکت کے سبب محکمہ پولیس نے تحویل میں لیتے ہوئے ان کی تحقیقات کی، جس میں ان کا نام علیم بیگ اور منور بیگ ہونے کا انکشاف ہوا اور ان کے پاس سے 17 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی اور ان کے خلاف کندہ کرتی، رینجال، ڈچپلی، نندی پیٹ، کاماریڈی و مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں بھی چوری کے مقدمات ہونے کا انکشاف ہوا۔
जिस पर इन्हें तहवील में लेते हुए अदालती तहवील में भेजा गया। इस मौके पर एसीपी ने डिचपल्ली सीआई कृष्णा व एसआई महेश की कारकर्दगी की सताइशी और अवाम से अपील की कि अपने गाड़ियों को कहीं भी पार्क ना करें और गाड़ियों को लॉक डाल कर ही कहीं पर जाए। పబ్లిక్ కి అంటే కన్స్యూమర్స్ కి కస్టమర్స్ కి పబ్లిక్ కి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చాలామంది బైక్స్ని ప్రాపర్ ప్లేసుల్లో పార్క్ చేయట్లేదు, ప్రాపర్ హ్యాండిల్ లాక్ కూడా చేయకుండా వెళ్తున్నారు. ఇలాంటి హ్యాండిల్ లాక్స్ కూడా చేయకుండా వెళ్ళడం వల్ల మిమ్మల్ని అవి క్యాజువల్గా ఎక్కడైనా షాపింగ్ సెంటర్లలో అదర్ కాంగ్రిగేటెడ్ ప్లేసెస్లో వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే ప్రాపర్ కేర్లెస్గా పార్క్ చేసి ప్రాపర్ హ్యాండిల్ లాక్ చేయని చోట అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు వెళ్ళగానే ఏదో విధంగా తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. దొంగతనము చేసేవాళ్ళు చాలా చోట్ల దొంగలు అనేది ఆపర్చునిటీ బేస్ చేసుకొని దొంగతనం చేస్తుంటారు. మనం అంత కేర్లెస్గా दफ्तर जमीयतुलमा बोधन रोड पर फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत का काम जारी, अवाम उन्नास से इस्तीफादे की अपील। मौजूदा हालात में वोट की अहमियत व ज़रूरत से सभी वाकिफ़ है। आने वाले इंतखाबात में बतौर ख़ास वोट का इस्तेमाल और इसकी ज़रूरत को समझाना और अवाम उन्नास को समझाना अज़हा ज़रूरी है। इसी अहमियत के तनाज़ुर में जमीयतुलमा ज़िले निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम गुज़िश्ता चंद रोज़ क़ब्ल वोटर ID बनवाने और नामों की दुरुस्तगी के लिए सेंटर कायम किया गया है, जिससे काफ़ी लोग इस्तिफ़ादा कर रहे। वाज़ेह है कि रोज़ाना दोपहर 2 बजे ता नमाज असर ज़िम्मेदारान इस अहम काम की अंजाम दही के लिए मौजूद रहेंगे। सदर जमीयतुलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने खिदमत गुज़ारान का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम मुसलमानों से इस्तीफ़ादे की अपील की है। इस मौके पर मौलाना रिजवान क़ासिमी, मौलाना अरशद अली क़ासिमी और दीगर मौजूद थे। जिले परिषद हाई स्कूल कोरेटला में असातिज़ा की अदम मौजूदगी के सबब वालिदैन तलबा ने किया बरहमी का इजहार व असातिज़ा की जायदादों को पुर करने का किया मुतालबा। ज़िले परिषद हाई स्कूल कोरेटला, जहाँ पर तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी कई मज़ामिन के लिए असातिज़ा दरकार नहीं है, जिसके सबब तलबा को तालीम के उसूल में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। ख़ास तौर पर जमात दहम के तलबा को काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, जिसके सबब आज औलिया तलबा ने सदर मुदर्रिस से मुलाकात करते हुए मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की और कहा कि असातिज़ा की कमी के सबब तलबा के कीमती वक्त ज़ाय हो रहा है और स्कूल का आगाज़ होकर अभी तक 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन महकमे तालीम की जानिब से किसी तरह की कार्रवाई न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया और मुकामी रुकन असम्बली से भी असातिज़ा के लिए नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया। से दरख्वास्त की जाती है कि वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट टीचर लाने की कोशिश करे, उर्दू की और तेलुगु की, फ़िज़िक्स की। लेकिन हम लोग को अब टीचर्स नहीं लाने से बच्चों को नुकसान होता और फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते और बोर्ड एग्ज़ाम करीब आता है, जब तक टीचर्स का इंतज़ाम करना ज़रूरी भी है। हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो फिर ऐसे ही फ़ेल होते जाते। अगर आप जल्दी इंतज़ाम कर दिए तो हमारा फ़ायदा होता और हम स्कूल का नाम भी रोशन करने की कोशिश करेंगे। मैं ZPHS गर्ल्स स्कूल कोरेटला की दहम जमात की तालिब इल्म हूँ। यहाँ पर टीचर्स की कमी है, फ़िज़िक्स और तेलुगु के। हम जब से 6th से पढ़ रहे 8th 9th 10th तो टीचर्स थे नहीं, लेकिन 9th में इंतज़ाम करके पढ़ लिए थे, लेकिन अब 10th में मुश्किल हो रही थी। बीवी के हाथों शौहर का कत्ल, हरासानी से तंग आकर बीवी का इक़दाम। शौहर की हरासानी से तंग आकर बीवी के हाथों शौहर के कत्ल की वारदात निज़ामाबाद शहर में मंजरियाम पर आई। चंद्रशेखर कॉलोनी के रहने वाले कृष्णा 31 साल की इसी कॉलोनी की रहने वाली गंगा के साथ 3 साल कबल शादी अंजाम पाई, लेकिन शादी के कुछ माह बाद से कृष्णा गंगा को मुसलसल हरासा कर रहा था। गंगा अपने मैके लौट आई थी। कल कृष्णा ससुराल पहुंचकर गंगा के साथ झगड़ा करने पर इसने बरहमी में वजनी रॉड से कृष्णा पर हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। टास्क के ज़ेर निगरानी में इनेकात अमल में लाए गए जॉब मेले को मुस्बित रद्दमल हासिल हुआ। ज़िले निज़ामाबाद के भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल के हाथ में इनेकात अमल में लाए गए जॉब मेले को मुस्बित रद्दमल हासिल हुआ। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन व अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि 41 से ज़ायद मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों की जानिब से 3500 अफराद के लिए मुलाजिमत की फ़राहमी अमल में लाने के लिए इनेकात अमल में लाए गए जॉब मेले में 10,000 से ज़ायद बेरोज़गार अफराद ने शिरकत की। वो मुलाजिमत के इंतखाब का अमल सुबह ठीक 9 ता दोपहर 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें 10वीं जमात, इंटर डिग्री, BTech, MTech, MBA, MCA, फार्मेसी, नर्सिंग के शोबों में तालीमी काबिलियत रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। इस मेगा जॉब मेले में मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले पोस्ट में
3500 मुलाजमीन का इंतखाब अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ अहकामनामा हवाले किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, निज़ामाबाद मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन ईगा संजीवा रेड्डी, ZPTC जगन, ZPTC MPP मंडल सदर सीनियर कायदीन बाजरेड्डी टीम के अराकीन ने शिरकत की। 41 కంపెనీలు వచ్చినాయి ఇక్కడికి. 41 కంపెనీలలో అన్ని పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి. పేటీఎం, HDFC, MSN ఫార్మా, అరబిందో ఫార్మా, అట్లానే బోలెడని డాక్టర్ రెడ్డిస్ వచ్చింది. చాలా ఉన్నాయి. 41 కంపెనీలు ఉన్నాయి. అన్ని పేర్లు నేను చదవలేను. వచ్చినటువంటి కంపెనీ ప్రతినిధులందరికీ కూడా ముందుగా నేను నిజామాబాద్కి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరందరూ శ్రమ తీసుకొని హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడికి రావడం, మా చిన్న పట్టణంలో మీకు వసతి మరి మంచిగా ఉందనుకుంటున్నాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి వసతులు అడ్జస్ట్ అయ్యి మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మీరందరూ వచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా నేను నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వచ్చినటువంటి కంపెనీస్ని మనం రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే, మా నిజామాబాద్ యువమిత్రులందరికీ నేను చెప్పేది, ఏదో మనకు పెద్ద డిగ్రీలు ఉంటేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని కాదు. మనం చేసిన డిగ్రీలో మనకు ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చినా సరే జాబ్ ఏది మనకు సూట్ అవుతుంది. पद्मशाली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन मुत्तहिद होकर तरक्की करने का MLC के कविता ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के विजय गार्डन में बरोज़ पीर को मुनक़्क़िदा पद्मशाली ख़ुसूसी मुलाक़ात प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC कलवा कुंटला कविता अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता मियां नीतू किरण शेखर ने शिरकत की। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से MLC के कविता ने मुखातिब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत पद्मशाली तबके की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा सियासी मैदान में इनकी तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने कहा कि BC तबके की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। बातज़ा शहर के मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की गई। इस प्रोग्राम में पद्मशाली संगम ज़िले सदर D यादगिरी, शहरी सदर D नसैयद, जनरल सेक्रेटरी A मुरली व दीगर ने शिरकत की। ఇదివరకు ఎట్లా ఉండే కరెంట్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, దానివల్ల వ్యాపారంలో ఏమైనా అభివృద్ధి ఉందా, లాభం ఉందా లేదా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అంటే స్పీచ్లు మస్తు ఇవ్వచ్చు, రెచ్చగొట్టే మాటలు నేను కూడా చెప్పవచ్చు. కాకపోతే మనమంటూ ఒక అడుగు పాజిటివ్గా ముందేసినప్పుడు, ఒక వ్యక్తి, ఒక ప్రభుత్వం, ఒక నాయకుడు పనిచేస్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు మీరు కూడా అట్లానే చేయాలనిపించుకుంటే ఇంకా ఉత్సాహంగా సమాజంలో పని అనేటువంటి జరుగుతుంది. కాబట్టి నా వినమ్రమైనటువంటి కోరిక ఏంటంటే, కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని, ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచన చేసి పనిచేసేటటువంటి ప్రభుత్వం BRS పార్టీ ప్రభుత్వం. మేము బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఇచ్చాం, వదిలేయచ్చు, కానీ టేకేదారులకు కూడా ఇచ్చాం. ఎందుకంటే బీడీ పరిశ్రమనే నష్టాలలో పోతుంది. ఒక మాట పద్మశాలి సోదరులు ఆలోచన చేయాలి. 60 ఏళ్ల చరిత్ర మన భారతదేశం, 75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర చరిత్ర. స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా ఆనాడు గాంధీజీ నూలు బడికి స్వాతంత్రోద్యమంలో అందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ मौज़ूआत के दीगर तबके के संगमों से वाबस्ता अराकीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में ज़िले BRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में जारी तरक्याती कामों फलाही स्कीमात से मुतासर होकर आर्मूर हल्का असम्बली के अहाते में वाक़े गंगारा मुंदा, चिकली, गुदपा, शाहपुर, मछरला, मिर्जापल्ली, खानापुर, वडरा संगम से वाबस्ता अराकीन व ख़वातीन ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासत तेलंगाना हुकूमत गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज करते हुए इन्हें रूबे अमल में लाने के लिए न सिर्फ ओहदेदारों को मुतहरिक किया जा रहा है, बल्कि अवाम में शऊर बेदारी करते हुए इन स्कीमात को ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन तक पहुँचाने और इन स्कीमात के समरात से हर एक घर को मुस्तफिद करवाने के लिए कारबंद है। KCR हुकूमत अपने अहद के पाबंद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम के हर तबके के लिए इक़दाम करने के लिए कोशा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम स्कीमात बरकरार रहेंगी। KCR रियासत के गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए स्कीमात का ऐलान नहीं करते, बल्कि इन स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हैं। इन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि वो हुकूमत की तमाम स्कीमात से बिला झिझक इस्तिफादा हासिल करे। इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए हर एक देहात में सड़कों का जाल, ड्रेन, कलवर्ट, स्ट्रीट लाइट अवाम को साफ और शिफाफ मीठा पीने का पानी मिशन भगीरथ स्कीम के तहत सरबराह किया जा रहा है और मंडल के तमाम मौज़ूआत में करोड़ों रुपए की लागत से कई तरक्याती
कामों को अंजाम दिया गया। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। और हुकूमत ख़वातीन की सेहत के ताल्लुक से हर मुमकिन इक़दामात करते हुए ख़वातीन को सहूलतों को फ़राहम करने में मसरूफ़ है और ख़वातीन के मसाइल को हल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। और इसी ज़िम्मन में आंगनबाड़ी वर्कर्स ख़वातीन को तरबियत फ़राहम करते हुए इनकी खिदमात को मज़ीद मुतहरिक किया जा रहा है। और इसके अलावा सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत CM ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसकी तहत आज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद खानगी दवाखानों में शरीक मियारी इलाज मुआलजा हासिल कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड स्कीम के ज़रिए अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। बोधन शहर में रुकन असम्बली शेख आमिर की शरीक हयात आयशा फातिमा की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र भारत राष्ट्र समिति तलबा तंजीम के ज़ेर निगरानी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर में रुकन असम्बली शेख आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र भारतीय राष्ट्र समिति तलबा तंजीम के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा तंजीम से वाबस्ता कायदीन ने कहा कि आज MLA शेख आमिर की मोहतरमा आयशा फातिमा की यौम सालगिरह के मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपना खून का अतिया दिया। इन्होंने कहा कि हम खून का अतिया देकर किसी की जान बचा सकते हैं। इन्होंने कहा कि खून का अतिया देने वाले कैंपों के जरिए जमा करदा खून हादसात और दीगर ज़रूरियात में ज़ख्मी होने वालों के लिए इस्तेमाल होगा। हर एक शख्स खून का अतिया करने की समाजी खदमात के इतराफ़ में अपने शराकत दारी को कायम करने की कोशिश करने का इजहार किया। బోధన్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు మొహమ్మద్ షకీల్ ఆమీర్ గారి సతీమణి ఆయిషా ఫాతిమా వదినమ్మ గారి జన్మదిన సందర్భంగా బోధన్ పట్టణ BRS పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన ఆయిషా ఫాతిమా వదినమ్మ గారు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు, బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు, పేద పిల్లలకు సైకిళ్ళు పంచుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఎవరికైనా అనారోగ్యంతో ఎవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళందరికీ డబ్బు పరంగా సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా చదువుకోవడానికి కూడా ఎవరైనా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులలో ఉంటే కూడా వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి बोधन MLA शेख आमिर की शरीक हयात आयशा फातिमा की यौम सालगिरह के पेश नज़र इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन MLA शेख आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में चेयरमैन मोहम्मद मोइज़ुद्दीन ने नवीपेट गवर्नमेंट स्कूल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस कैंप में BRS पार्टी से वाबस्ता 50 कायदीन ने शिरकत करते हुए अपना खून का अतिया दिया। बातज़ा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मोइज़ ने मेंबर वेंकटेश्वर राव उमा के हमरा खून का अतिया देने वालों को फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए पहले मरहल के तौर पर मोहतरमा आयशा फातिमा को यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द अमल मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, MPP संगम श्रीनिवास, नवीपेट बिनोला, सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रवीण बाबर, नायब सरपंच मलेश, जिया स्वामी, कायदीन सूरी बाबू, लोकम नसिया, माइनॉरिटी कायद ताहिर बिन जाफर, जावेद फसी व दीगर ने शिरकत की। వారి మ్యారేజ్ సందర్భంగా మరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరియు షకీల్ ఆమీర్ జన్మదిన సందర్భంగా నవీపేట రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ టీం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం కానీ ఈ సంవత్సరం కూడా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు MPP సంగం శ్రీనివాస్ పాఠకులు గారు, ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచులు, MPTCలు, BRS పార్టీ నాయకులు, యువ నాయకులు, యువజన సంఘ నాయకులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు జన్మదిన సందర్భంగా ఆయిషా మేడం జన్మదిన సందర్భంగా సుమారు 50 మంది రక్తదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలపడం జరుగుతుంది. మరొకసారి రెడ్ క్రాస్ ద్వారా రక్తదానంలో ఏర్పాటు చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి చిన్ననాటి పెద్ద స్థాయి వరకు ఉన్న కార్యక్రమాలందరికీ जिले निर्मल के जिले परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन के विजय लक्ष्मी रामकिशन रेड्डी की सदारत में ZP स्टैंडिंग कमेटी का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निर्मल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन के विजय लक्ष्मी रामकिशन रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया। ZP स्टैंडिंग कमेटी में शिरकत करने वाले ZPTC ने दीगर मंडलों से मुताल्लिक़ मसाइल की समाअत करते हुए तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश की और नए राशन कार्ड के अलावा
नए पेंशन की मजीद मंजूरी अमल में लाते हुए दलित बंधु बी बंधु देने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के तहत लोन हासिल करने वाले मुस्तहिकीन को सब्सिडी फौरी तौर पर मंजूरी अमल में लाने की जिले अहदेदारान से ख्वाहिश की। इस मौके पर मंडल की तरक्की के लिए ताउन देने वाले वो रियासती वज़ीर व MLA के अलावा जिले परिषद चेयरमैन को इजहार तशक्कुर पेश किया। राखी पूर्णिमा के मौके पर निज़ामाबाद RTC की जानिब से ख़वातीन के लिए खुसूसी तोहफा। पूरे निज़ामाबाद ज़िले के अवाम को मतला किया जाता है कि राखी पूर्णिमा के मौके पर निज़ामाबाद, तारमुर, बांसवाड़ा, बोधन और कामारेड्डी बस स्टैंड पर 30 अगस्त 2023 और 31 अगस्त 2023 को गिफ्ट बुक्स लगाए गए हैं। ख़वातीन मुसाफिर बसों में सफ़र करने के बाद अपने टिकट के पीछे अपना नाम और शहर का नाम और फ़ोन नंबर लिखकर गिफ्ट बॉक्स में डालें। राखी पूर्णिमा के बाद तमाम बस स्टेशन पर रखे गए बॉक्स से लकी ड्रॉप के जरिए 3 टिकटों का इंतखाब किया जाएगा और इन्हें इनामात दिए जाएंगे। इसीलिए इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई। अवाम के लिए कारआमद तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल करने के लिए MP DRV ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में MP DRV की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी हुकूमत के फंड से मुख्तलिफ महकमों के तहत शुरू किए जाने वाले फलाही व तरक्याती कामों की पेशरफ्त के ताल्लुक से मशावरत की गई और इसके अलावा R&B व नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन के ज़ेर निगरानी जारी सड़कों की तामीर, रेलवे ओवरब्रिज वो कैंप फंड से शुरू किए जाने वाले कामों, RRR स्कीम के तहत तालाबों की बहाली व मरम्मत, कौमी सेहत मिशन, फसल बीमा, प्रधानमंत्री योजना, सेवा निधि, मुद्रा लोन की फराहमी के अलावा तालीम की तरक्की व दीगर उमूर के ताल्लुक से मशावरत की गई। इस मौके पर MP DRV ने खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मरकज के फंड से दीगर इलाकों में शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों में लापरवाही होने का इजहार किया और इसके अलावा माकलूर मंडल के मामड़ी पल्ली के पास अप्रोच रोड की तामीर के साथ साथ दीगर मुकाम पर RBO तामीरी काम सुस्त रफ्तार से जारी रहने के बायस इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान से तफसीलात हवाले करने की ख्वाहिश की। ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ ఉట్టి పేపర్కే పరిమితం అవుతున్నాయి. లైక్ ఈ మధ్య అతి వర్షాలకి, అకాల వర్షాలకి డ్యామేజ్ అయిన క్రాపు, రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డరు, నష్టపోయినరు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఏప్రిల్లో అన్సీజనల్ రెయిన్స్కి చాలా డ్యామేజ్ అయింది. 9 కోట్ల రూపాయలు, సుమారు 25,000 రూపాయలు హెక్టార్కి అనౌన్స్మెంటు ఏప్రిల్లో వచ్చింది. 9 కోట్ల రూపాయలు జిల్లాకి శాంక్షన్ అయింది. ఇది इंदौर युवता दफ्तर का MLC कविता, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया मुशाहिदा। शहर के इंदौर युवता दफ्तर का MLC के कविता, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और कहा कि इस खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से अब तक 78 से ज़ायद यतीम व नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों के अलावा शहर के रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड व दीगर मुकामात पर रहने वाले भी खाने की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, डॉक्टर प्रतिमा राज, BRS ఖైదీన్ व दीगर ने शिरकत की। 5-6 acres ల్యాండ్స్ అక్కడ మల్లారెడ్డి గారు మన ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పించి వారికి సహాయం చేసి అందరం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. ఒక్కసారి ఆ మేడము ఆమె ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినాయి వారిని ఒకసారి కల్పిస్తాను. మీరు వెళ్ళి విజిట్ చేయండి, చేసి ఆ పద్ధతులు నేర్చుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. మనం దాంతో మనకు మంచిగా చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మిమ్మల్ని నేను కోరుతూ, ఎట్లయితే మా గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్దన బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న చెప్పినట్టు గణేష్ అన్న, నేను గోవర్ధన్ అన్న ఒకసారి కూర్చొని మరి ఏం చేయగలుగుతాం మీకు అనేది ఆలోచించుకొని మాట ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను మాట ఇచ్చి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ చేయకపోతే బాగుండదు. డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం నుండి మీకు బిల్డింగా, ల్యాండా, ఏందా అన్నది డెసిషన్ తీసుకొని చెప్తాం. చేసేది పక్క, ఏం చేస్తామన్నది మాత్రం తప్పకుండా చెప్తాం. అంటే ఏం చేస్తామన్నది ఎట్లా చేయగలుగుతామని ఆలోచించి మీకు చెప్తాం. మీన్ వైల్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఎందుకంటే మానవతా విలువలు తగ్గిపోతూ అసలు మన కవులు పాటలు రాసే పరిస్థితి వచ్చింది. शहर के भूमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में इनेकात अमल में लाए गए जॉब मेले में 41 से ज़्यादा कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत व इस जॉब फेयर को मुस्बित रद्दअमल मिलने का
टास्क CEO श्रीनाथ सिन्हा ने किया इजहार। शहर के बोरगम पी में वाक़ भुमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में मुनक़िदा मेगा जॉब फेयर को मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला। टास्क CEO श्रीनाथ सिन्हा ने कहा कि MLC के कविता की काविशों के सबब शहर के IT हब में मुलाजिमत की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है और इस जॉब फेयर में 41 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। चित्रापुरी फिल्म फेस्टिवल, सीएंट लिमिटेड, DS टेक्नोलॉजीज, ग्लोबलॉजिक, हिटाची ग्रुप, मेधा स्राव ड्राइंग, वरुण मोटर्स, HDFC, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जेनफास्ट, MSN, लैबोरेटरीज, डॉक्टर एडी लैबोरेटरीज व दीगर ब्रांडेड कंपनियों के नुमाइंदों के ज़ेरे निगरानी में स्टॉल्स का क़याम अमल में लाया गया। इस जॉब मेले में RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के ज़ेरे एहतमाम तमाम तर सहूलियात के अलावा ताम की फ़राहमी अमल में लाई गई और तलबा के वालिदैन के लिए टेंट का क़याम अमल में लाकर सहूलियात फ़राहम की गई। I want to clarify one thing, that this is not only companies that were from the IT Tower Nizamabad, but companies all across Telangana have come over here to provide. We have companies which are into providing job opportunities for students who have cleared their 10th and 12th, as well as ITI, Polytechnic, degrees, BTech, everything. So there are a whole lot of companies, different types of companies. We had Keolis, which is into the Hyderabad Metro Railway, their parent company. We have MSN Pharma, which is Aurobindo Pharma. We had Scient, which is into aerospace and in IT in aerospace, etc. That domain, we have other companies, Chitrapuri films, etc. There were multiple companies. So there were total 43 companies who had come, and there were about 300-500 plus jobs which are on offer. And you saw the response over here. 8,000 plus students had gathered over here hoping to make their career. And I would also like to mention over here that it is important for these youth to realize that this kind of an opportunity is being provided to them first time over here itself through task and the local political will. शहर के बोरगम पी में वाक़ भुमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में मुनक़िदा जॉब फेयर में शिरकत करने वाले MLC के कविता, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता को ब्रह्मा कुमारियों ने राखी बांधी। ज़िले निज़ामाबाद बोरगम पी में वाक़ भुमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में मुनक़िदा जॉब फेयर में MLC के कविता, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, ZPTC मेंबर जगन मोहन, टास्क के नुमाइंदों के मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों को ब्रह्मा कुमारियों ने राखी बांधते हुए राखी पूर्णिमा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। नंदीपेट मंडल का दौरा करने वाले MLA जीवन रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में बीडी कमीशन एजेंट ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ बीडी सनत में MLA जीवन रेड्डी ने बीडी कमीशन एजेंट से मुलाकात की। इस मौके पर कमीशन एजेंट ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेंशन की मंजूरी अमल में लाने पर खुशी का इजहार करते हुए BRS पार्टी को हिमायत फराहम की। बातुज़ा कमीशन एजेंट की जानिब से MLA जीवन रेड्डी को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़िले कामरेड्डी के नसरुल्लाबाद राम मंदिर कम्युनिटी हॉल में माजूरीन के लिए इजाफा किए गए पेंशन प्रोसीडिंग कॉपी को कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हवाले। ज़िले कामरेड्डी नजरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर वाक़ राम मंदिर कम्युनिटी हॉल में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 513 माजूरीन को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजाफा किए गए पेंशन प्रोसीडिंग हवाले किया और इसी मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा 30 कलियन लक्ष्मी शादी मुबारक के मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। इस मौके पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि माजूरीन को मुल्की सतह पर 4016 रुपये देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया और कहा कि मुल्क में हमारे KCR जैसे 28 वज़ीर आला है, लेकिन हमारी रियासत में माजूरीन को 4016 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के अंकापुर में वाक़ रिहाइश गाह में 400 ख़वातीन के साथ राखी बंधवाते हुए साड़ियों की तक़सीम अमल में लाई। आर्मूर मंडल के अंकापुर में वाक़ MLA जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में 400 से ज़्यादा ख़वातीन के साथ राखी बंधवाई व बातज़ा ख़वातीन में साड़ियों की तक़सीम अमल में लाते हुए इनकी दुआएं हासिल की। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में कसीर तादाद में ख़वातीन नजर आने के बाइस हलचल नजर आई। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। కాబట్టి మీరంతా ఒక వ్యక్తులు కాదు, ఒక శక్తులు. ఒక్కొక్క నా సోదరుమని రాఖీ కట్టిన అక్క చెల్లెలందరూ ఒక 1000 మందిని అటెండ్
చేయగలిగే గొప్ప శక్తి ఉన్న వ్యక్తులు. మీరు సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ కాదు, మీరు 3 ఫేజ్ల కరెంటు మిమ్మల్ని ముట్టుకుంటే ఎవరైనా మారిపోతాడు. అంతేనా? కాబట్టి మీ శక్తిని మరొకసారి చూపించండి. 2014లో 18లో ఏ విధంగా ఇది ఆశీర్వదించారో 2023లో కూడా అదే విధంగా ఆశీర్వదించండి. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। माजूरीन को पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा पेंशन की फराहमी करने वाले सिर्फ तेलंगाना हुकूमत। कामारेड्डी में नाबिना अफराद में पेंशन पासबुक की रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने की तकसीम। टास्क के ज़रिए एहतिमाम जॉब मेले का शानदार पैमाने पर इनेकाद। 3500 अफराद को ऑफर लेटर की। मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता MLA बिगाला गणेश गुप्ता RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने की हवाले। ये तो बस आवाज है कि बीवी व ससुराली रिश्तेदारों ने किया शौहर का बेदर्दी से खत्म। शहर के रूरल पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया वाक़या। राखी त्यौहार के मद्देनजर खवातीन में साड़ियों की तकसीम। आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के मकान पर पहुंचते हुए 400 खवातीन ने बांधी राखी। वो इनको तोहफतन इनमें साड़ियों की गई तकसीम। राखी त्यौहार के मौके पर RTC की जानिब से खवातीन के लिए खुसूसी ऑफर का RTC ने किया ऐलान। सत्रह गाड़ियों की चोरी में मुलविस सारिकीन को डिचपली पुलिस ने लिया हिरासत में। ACP M किरण कुमार का सहाफती बयान। दिशा मीटिंग का जिले कलेक्टर दफ्तर पर MP अरविंद की क़ियादत में इनेकाद। ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।